So the properties that we were going to discuss were, first of all, relation in atomic ionization enthalpy. First we'll write in the tabular format the first, second and third ionization enthalpy. So from scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, okay, then iron, cobalt, nickel, and last copper and zinc. Now we'll see that when first ionization enthalpy is said, it means that scandium from this format is converted to Sc1 plus, that is one electron is removed. So this is first ionization enthalpy. Basically, the only ones which we need to remember, which are going to come in NCERT, are chromium, manganese, copper and zinc. So what happens is, in chromium, in this state, and we converted it to the state Cr plus, Mn plus, Cu plus and Zn plus. So this is the first ionization enthalpy. The configuration here is 4s1 3d5. So to remove this one electron is quite easy. So ionization energy 1 of chromium is quite low. For manganese, if we look at it, it is 4s2 3d5. So it's quite difficult because it is fully filled and we need to convert to Mn plus by removing one electron. So ionization energy will be difficult, okay, or high for manganese. For chromium it would be low. Now for copper, as it is to chromium, so is it to copper, like that we link. So over here it would be low, and for zinc it would be high. So from this we saw that first ionization enthalpy of chromium and copper is low, but for manganese and zinc it is high. Then opposite occurs in second ionization energy, where it is converted into 2 plus form, Cr2 plus. So here the configuration becomes 4s0 3d5, because we remove this one electron from here. Therefore it becomes 4s0 3d5. Okay, the changes. To convert it into Cr2 plus, we have to remove electron from here, which is half filled. So the second ionization energy for conversion from this to this is quite difficult. So it is said to be high. So second ionization energy of copper would also be high because it is similar to chromium. But for manganese and zinc, the second ionization energy is low. Okay, so only key points that we need to remember is first ionization energy of chromium and copper, okay, it is low, but the same case for manganese and zinc, it is high. Then second ionization energy for chromium and copper, it is high, while for manganese and for zinc it is low. So these were the two cases which are explained in the format of statements in the processing values. Okay, now the ionization energy is explained, how the trend is going on and how nuclear charge increase causes various increase. See, due to increase in nuclear charge, okay, when nuclear charge increases by filling of the inner d orbital, okay, inner d orbital is filled, so ionization energy which is there is going to increase along the series from left to right. See, from scandium to zinc, we see that here if the configuration is 3d 1 4s2, okay, and here it is 3d 10 4s2. So electron in the d orbital has been increased from 1, then here it would be 3d 2 4s2. So it is increasing in the successive d orbital, which is inner d orbital. So ionization energy also from left to right, which is there, in general it would increase. Okay, that's what they have given, but small variations occur. We saw the exceptions given just now. Okay, the 4 exceptions. Table 8.2, which we saw earlier, there are values given. These values show successive ionization energy which is there do not increase as steeply as in the main group elements. In general, if we look at S block or P block elements, here normal trend of increase in ionization energy is seen, but here not so. It's not so easily increasing or decreasing. There is quite an exception seen.
the first ionization energy increases, okay, but the increase in the second and third ionization energy is quite higher than the first. Why is this happening? See, this irregular trend which is seen in the first ionization energy of the 3D metals is of little chemical significance, but it can also be accounted by considering that removal of one electron alters. So what they are saying over here is, suppose we take titanium, okay, which is 3d5 3d2 4s2, okay. When we convert it into Ti1 plus, that is remove one electron, so it converts into 3d1 4s2. Similarly, if we convert it into Ti2 plus, so it becomes 3d0 4s2. So what we did, this was first ionization energy and this is second ionization energy. So they are saying that जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ओके, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या होता है, 4s और 3d ऑर्बिटल के बीच में एनर्जीज का चेंज दिखाई देता है. ये सबसे ज़्यादा हमें किस में दिखाई देगा, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड में. क्यों? क्योंकि अगर एक एलिमेंट Mn मैग्नीज की कंसिडर करें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर उसका देखें तो 3d5 4s2. अगर हम Mn 1+ में कन्वर्ट करें इसे तो ये होगा 3d4 4s2. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन जनरल द हाफ फिल्ड जो सबशेल था वो हाफ फिल्ड से अनस्टेबल हो चुका है. तो ये स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं. तो ये जो ऑल्टरनेशन हो रहा है उसके वजह से रिलेटिव एनर्जी में भी ऑल्टरनेशन दिखाई देती है. इसलिए यूनी पॉजिटिव आयन दैट इज Mn1+ के फॉर्मेट में जो था उसके पास d⁻n, n की जगह पे कुछ भी नंबर हो सकता है, ओके, कॉन्फ़िगरेशन होता है और 4s इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ओके. दस रीऑर्गेनाइजेशन होता है एनर्जी का जो अकम्पनी करता है आयनाइजेशन विद सम गेन इन एक्सचेंज एनर्जी as the number of electrons increases and from the transference of s electrons into d orbital. There is generally expected increase in the increasing trend in the values as effective nuclear charge increases. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेसिकली, जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये देखो, ये न्यूक्लियस था, इसके अराउंड ऑर्बिटल्स हम बनाएंगे. तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो ऐसे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हम इसे 4s कहते हैं और इसके अंदर जो होता है वो होता है 3d ऑर्बिटल. जो 3d और 4s ऑर्बिटल है, ये दोनों ऑर्बिटल, इन दोनों में काफ़ी कम एनर्जी डिफरेंस होता है, ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था. और 3d ऑर्बिटल जो है उसकी शील्डिंग जो है कम होती है एज कम्पेयर टू s ऑर्बिटल. इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इजीली हम निकाल पा सकते हैं यहाँ से. तो हमें पता चल रहा है कि 3d ऑर्बिटल जो के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है शील्डिंग में s ज़्यादा होता है, फिर p होता है, फिर d होता है और फिर f होता है. लेकिन अगर कहे कि इलेक्ट्रॉन्स पहले निकलते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंगनीज के लिए, ओके, 3d5 4s2, जब हम Mn1+ के फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट करें, यहाँ पे 4s लिख देते हैं, अगर इसे Mn+1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो 3d5 होता है 4s1, मतलब एक s का इलेक्ट्रॉन निकल चुका है. अगर इसे वापस से ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये 4s है. अगर इसमें वापस से एक इलेक्ट्रॉन हम निकालें Mn2+, तो ये सिर्फ 3d5 हो गया. तो यहाँ पे एक भी 4s इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जब घट रहे तो 4s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक दूसरे को शील्ड काफ़ी कम कर पाते हैं. ये इलेक्ट्रॉन इसे कैसे बचा पाएगा? लेकिन जब 4s ऑर्बिटल था तभी थोड़ा बहुत तो शील्डिंग अच्छा हो रहा था, क्योंकि d ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन थे ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर रख रहे थे, ओके. तो ये शील्डिंग अच्छी हो रही थी. लेकिन अभी जब ये इलेक्ट्रॉन सारे जा चुके हैं तो उसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को शील्डिंग अच्छे से नहीं हो रही है. ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत ऐसे पकड़े जा रहे हैं न्यूक्लियस से, तो इन्हें निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है. इसलिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर हम कह सकते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. पहले इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी आसान था क्योंकि शील्डिंग अच्छे से हो रही थी,
लेकिन अभी शील्डिंग के लिए खुद ही खुद को शील्ड नहीं कर सकते। तो यही पैराग्राफ में कह रहे हैं कि बेसिकली जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, however the value of chromium is lower because of absence of any charge in its d configuration and the value for zinc is higher because it represents। तो हमने देखा था एक्सेप्शन, क्रोमियम का आयनाइजेशन एनर्जी लो क्यों था और जिंक का हाई क्यों था। तो वही दो यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्मेट में दिया है। लोएस्ट जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये मेटल्स का +2 फॉर्मेट में होता है। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल चुका है। अगर +2 फॉर्म करना है इन्हें गैशियस आइटम्स से, इन्हें +2 आयंस पे कन्वर्ट होना है, देन फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का सम जो होता है एडिशन, आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 ओके इज रिक्वायर्ड इन एडिशन टू एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मतलब डेल्टा H एटोमाइजेशन। तो इन तीनों का मिलावट होने के साथ तभी ही गैशियस आइटम को हम +2 फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में ला सकते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद the dominant term is second ionization energy which shows unusually high values for chromium and copper। हमने देखा था दो एक्सेप्शंस, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हाई किसकी थी, क्रोमियम और कॉपर की, जहाँ पे D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन +1 फॉर्म में था, इसलिए उसे निकालना काफ़ी मुश्किल था एक और इलेक्ट्रॉन। लेकिन जिंक के लिए काफ़ी लो था सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, हमने देखा था, ये यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है। द ट्रेंड इन द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड बाय the 4s orbital and shows greater difficulty। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी Mn2 प्लस और Zn2 प्लस के लिए ज़्यादा है, ओके ये कह रहे हैं यहाँ पे। सो आयनाइजेशन एनर्जी 3 किसके लिए ज़्यादा है, ये दो एलिमेंट्स के लिए जो मार्क किए हैं, Zn2 प्लस एंड Mn2 प्लस। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं इन जनरल थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आर क्वाइट हाई एंड देयर इज मार्क्ड ब्रेक बिटवीन द वैल्यूज फॉर Mn2 प्लस एंड Fe2 प्लस, ओके। उसके बाद जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, Mn2 प्लस की ज़्यादा तो होती है, Zn2 प्लस की भी होती है, लेकिन Fe2 प्लस की भी होती है। ये 3 याद रखना है फॉर हाई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, इसलिए ये कंसिडर करना है। उसके बाद जो पॉइंट्स दिए हैं, ऑल्सो हाई वैल्यू, ओके ऑल्सो हाई वैल्यू फॉर कॉपर, निकल एंड जिंक। तो कॉपर जो है, निकल जो है और जिंक, इनके भी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से, इसलिए कॉपर, निकल और जिंक जो होते हैं इनका 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम जब कॉपर का +1 फॉर्म होता है उसके बाद CO2 प्लस होता है, उसके बाद CO3 प्लस जो है ये हो नहीं सकता। यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, इसलिए ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। वैसे ही निकल है, वैसे ही जिंक है, यहाँ पे दिया है कॉपर, निकल और जिंक के ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर भी आयनाइजेशन एनर्जी हमें कुछ आइडिया देता है रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा स्टेबल है उसके बारे में हमें आयनाइजेशन एनर्जी आइडिया देता है, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है, ओके। उसके बाद वन ऑफ द नोटेबल फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज ग्रेट वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स काफ़ी अच्छे वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो, स्कैंडियम को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है, ओके। तो सारे एलिमेंट्स +2, सिर्फ स्कैंडियम +3 करता है। इसके अलावा हमें और जो याद रख सकते हैं वो है जिंक भी सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट और स्कैंडियम भी सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये एक पॉइंट याद रख सकते हैं। उसके बाद स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक जाते वक्त +3 +4 +5 +6 ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ओके। और आयन, निकल, कॉपर, और ये 3 जो है आयन, कोबाल्ट और निकल, ये कॉमन +2 +3 +4 एग्जिबिट करते हैं। कॉपर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देता है, ओके ये याद रखना है। उसके बाद जो एलिमेंट्स टाइटेनियम से मैंगनीज है, यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, ये डार्क हाईलाइटेड है, मतलब इनमें ये स्टेबल है। मैंगनीज में +2 स्टेबल है, ये याद रखना है, और क्रोमियम में +3 स्टेबल है, ओके। सो क्रोमियम में +3 और +6, मैंगनीज में +2 और +7। आयन, कोबाल्ट और निकल यहाँ पे +2 +3, ये 2 एलिमेंट्स में यहाँ पे सारे +2 ही स्टेबल है, ओके। निकल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक में सारे +2 स्टेबल है। तो ऐसे करके याद रखना है कि कौन सा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन सा कॉमन है, और कौन से एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है। स्कैंडियम +2 नहीं दिखाता, इतना याद रखना।
द एलिमेंट्स जो देते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर इन द मिडल, तो देखा था मैंगनीज सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा था। उसके बाद कम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाले एलिमेंट्स भी होते हैं एक्सट्रीम एंड्स पे। ओके, जो हमने देखा था स्कैंडियम सिर्फ +3 था और जिंक सिर्फ +2 था, एक्सट्रीम एंड्स में जो एलिमेंट्स थे। ओके, फ्रॉम ईदर टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू लूज और शेयर, स्कैंडियम टाइटेनियम, और मेनी डी इलेक्ट्रॉन्स, हेंस फ्यूअर ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन विच टू शेयर। तो कॉपर, जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी कम रेंज की थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इधर काफ़ी कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ताकि वो शेयर भी नहीं कर सकते, या फिर इतने ज़्यादा होते हैं कि वो खुद स्टेबल रहने के लिए शेयर नहीं करते। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जो अर्ली सीरीज होता है वहाँ पे स्कैंडियम में +2 हमें नहीं पता है, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, और टाइटेनियम जो +4 स्टेट में है वो ज़्यादा स्टेबल था, हमने देखा था टैबुलर फॉर्मेट में कि +4 स्टेट ज़्यादा स्टेबल था टाइटेनियम का। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि एट द अदर एंड ओनली ऑक्सीडेशन, जिंक का केवल +2 ऑक्सीडेशन था, यहाँ पे देखा था हमने सेपरेटली, क्योंकि नो डी इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व। ओके, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन पता है 3d10 4s2, तो केवल ये s के ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, d के कोई जाते नहीं है, इसलिए सिर्फ जिंक Zn2+ ही फॉर्म करता है। उसके बाद मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रीजनेबल स्टेबिलिटी का रिस्पॉन्ड इन वैल्यू टू द सम ऑफ। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स होते हैं, टाइटेनियम में अगर देखें कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2 होता है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज सम ऑफ d एंड s इलेक्ट्रॉन, तो 2+2 दैट इज 4 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे ही वैनेडियम का 3d 3 4s2 होता है। ओके, तो यहाँ पे 3+2 5, तो वैसे ही तो ये मैंगनीज तक ही वैलिड होता है, यही कह रहे हैं यहाँ पे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ s एंड d इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये मैंगनीज तक वैलिड है। ओके, फिर टाइटेनियम जो है वो +4 स्टेट में एग्जिस्ट करता है TiO2, वैनेडियम +5 स्टेट में BO2 द होल 1+, क्रोमियम जो है ऐसा है, मैंगनीज जो है इसका भी ऐसा दिया है। तो ये सब दिया है स्टेबिलिटी के लिए। फिर आयरन कौन से स्टेबल फॉर्म में +2 एंड +3, कोबाल्ट भी +2 +3, हमने देखा था निकल, कॉपर, जिंक सारे +2 ही स्टेबल थे, तो यही यहाँ पे दिखाया। जो ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएबिलिटी होती है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि हम डी ऑर्बिटल को इनकम्प्लीटली फिल करते हैं। उसके बाद ऐसे फिलिंग होती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स यूनिटी से डिफर करते हैं, मतलब 1+1 से डिफर करता है। ये +2 है, +3 +4, सो एक एक नंबर का डिफरेंस होता है। इसलिए यहाँ पे जो है नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट्स नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स से डिफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट ऑफ 2 से डिफर करते हैं। जैसे कि अगर हम कंसिडर करें नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोई भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो वहाँ पे भी देखें तो +2 स्टेट से डिफरेंस होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, ना ही +1। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि एक इंटरेस्टिंग फीचर होता है जो ऑक्सीडेशन स्टेट के वेरिएशंस में दिखाई देता है। ओके, एंड इट्स सीन फ्रॉम ग्रुप 4 थ्रू ग्रुप 10। या हम ये देखते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हेवियर मेंबर्स फेवर करते हैं हमेशा। जब ग्रुप 15 बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे +3 दिखाए तो यहाँ पे +1 दिखाना प्रेफर करता है। लेकिन अगर हम यही डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखें, ग्रुप 6 में आता है क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, ऐसे ग्रुप 6 में। तो ये यहाँ पे देखते हैं कि मोलिब्डेनम और टंगस्टन जो है ये +6 स्टेट, जो काफ़ी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें फेवर्ड करता है रादर देन क्रोमियम। ओके, तो मोलिब्डेनम, टंगस्टन +6 स्टेट में स्टेबल होते हैं देन क्रोमियम। तो क्रोमियम को +6 में नहीं, उससे कम में जाना, मतलब क्रोमियम क्या कर रहा है, +6 से कम में जाना प्रेफर कर रहा है। ओके, कोई कम ऑक्सीडेशन स्टेट, सपोज हम +5 लें, तो क्या हो रहा है उसका रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। ओके, ये खुद को रिड्यूस करना पसंद कर रहा है, तो बाकी को ऑक्सीडाइज करेगा। तो क्रोमियम +6 स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट दिया है कि क्रोमियम +6 स्टेट में जो है एक एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की काम करेगा, ताकि वो खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रिड्यूस करे और दूसरों का इंक्रीज करे। लेकिन मोलिब्डेनम और टंगस्टन जो है वो 6+6 स्टेट प्रेफर करता है, तो एग्जिस्ट करना पसंद करते हैं। लो ऑक्सीडेशन स्टेट, काफ़ी लो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कम्प्लेक्स कंपाउंड्स में दिखाई देते हैं जिसपे लिगेंड्स होते हैं। ये लिगेंड्स के पास पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर होता है,
इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्डिंग। तो अगर हम देखें निकल कार्बोनाइड, कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाया है, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली सिग्मा पाई सिग्मा टाइप का अटैचमेंट होता है, जहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज जो होता है एक दूसरे के बीच में। अगर हम डिटेल में देखें तो सपोज ये है मेटल, जो भी हो, यहाँ पे निकल है, यहाँ पे मेटल लेते हैं, ये सी ट्रिपल बॉन्ड ओ होता है, तो इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ओके, और इसका 3 ऑर्बिटल। उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो मेटल होता है, मेटल के पास होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लेने की क्षमता, तो ये ऐसा इलेक्ट्रॉन कार्बन मेटल को लेता है और एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड में चला जाता है। मेटल के पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल वो कार्बन को देता है और यहाँ पे बनाता है पाई ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग, ओके। ये जो टाइप का बॉन्डिंग होता है इसे मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग होता है, और इसके वजह से जो है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी लो होता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का 0 है, यहाँ पे आयन का 0 है, निकल एंड आयन 0, तो वही दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो है ट्रेंड्स इन M2+/M+ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो M2+/M+ का मतलब होता है जो M2+ फॉर्म है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और M में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अगर प्रोसेस पॉसिबल होता है, ये प्रोसेस अगर वैलिड है, तो जो E0 की वैल्यू होती है फॉर M2+/M ये होनी चाहिए पॉजिटिव। तो ये एक टेक्निक है जिससे हम डायरेक्टली ये असर्टन कर सकते हैं कि एक रिएक्शन M2+ से M में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं, ओके। यहाँ पे जो टेबल दिया है वहाँ पे बेसिकली सारे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाए सॉलिड मेटल आइटम्स टू M2+ आयंस इन सॉल्यूशंस एंड देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ E0 एंड कैलकुलेटेड वैल्यू। तो डेटा दिया है बस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कॉपर जो है, कॉपर के पास पॉजिटिव E0 वैल्यू होता है। पॉजिटिव E0 मतलब ये जो प्रोसेस है ये वैलिड है, तो कॉपर क्या होगा, वो +2 स्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट होना पसंद करेगा, ओके। ये रिएक्शन वो फेवर करेगा, इसलिए इसका E0 जो है ये पॉजिटिव दिया है। ये क्या करता है, ये इनेबिलिटी मतलब ये H2 जो है हाइड्रोजन गैस एसिड से रिएक्ट नहीं करता। हमेशा जब मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ओके, जब भी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इन जनरल वो H2 गैस रिलीज करते हैं, लेकिन कॉपर के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। केवल ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स जैसे कि नाइट्रिक एसिड जो है HNO3, ओके, एंड हॉट सल्फ्यूरिक एसिड इसे H2SO4 कहते हैं, ये दोनों के प्रेजेंस में जब कॉपर रिएक्ट करता है तभी वो रिड्यूस एसिड्स जो है वो रिड्यूस होते हैं। एसिड्स रिड्यूस होना मतलब कॉपर ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज मतलब क्या, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है, ओके। रिएक्ट विद कॉपर द एसिड्स बीइंग रिड्यूस्ड। तो यही एक एक्सेप्शन है जहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और ये बैलेंस नहीं होता बाय हाइड्रेशन एंथैल्पी। ऐसे क्यों कह रहे हैं, बेसिकली हमेशा जो डेल्टा E0 पॉजिटिव आया है ये किसका एडिशन होता है, डेल्टा E0 जो है ये होता है एडिशन 3 एनर्जीज़ का। वो 3 एनर्जी होते हैं, हम डेल्टा E0 की जगह पे डेल्टा H लेंगे, विच इज़ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या फिर एटोमाइजेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, ओके, हाइड्रेशन एनर्जी। ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसमें 2 आते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि E0 वैल्यू मतलब डेल्टा H पॉजिटिव है, ये भी एक पॉइंट हमें पता चल रहा है, डेल्टा H पॉजिटिव है कॉपर का। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है ये पॉजिटिव होता है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये भी पॉजिटिव होती है, हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव होती है। अगर ओवरऑल पॉजिटिव है मतलब हाइड्रेशन एनर्जी जो नेगेटिव वैल्यू है वो काफ़ी कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इट्स नॉट बैलेंस बाय हाइड्रेशन एनर्जी। जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ये पॉजिटिव वैल्यू को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, इसलिए कॉपर का जो है E0 पॉजिटिव होता है, ये रीज़न होता है। उसके बाद जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स
लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट अक्रॉस सीरीज इज रिलेटेड टू जनरल इंक्रीज इन, तो फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब वो पॉजिटिव है, तो ये इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, ओके, डाउन द ग्रुप नहीं, लेफ्ट टू राइट। इसके वजह से, ये इंक्रीज के वजह से, फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन की वजह से ई नॉट का वैल्यू लेस नेगेटिव आ रहा है, ओके, मतलब ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। It is interesting to note that E naught value for manganese, nickel and zinc is said to be more negative than expected from the trend. तो हमें पता चल रहा है कि मैंगनीज और जिंक के बात करें तो यहाँ पे बेसिकली ई नॉट नेगेटिव कह रहे हैं। ई नॉट नेगेटिव मतलब क्या, हमने अभी देखा कि ई नॉट नेगेटिव मतलब Mn2+ जो है Mn में कन्वर्ट नहीं होना पसंद कर रहा है, बल्कि ये अगर फेवर्ड होता तो ई नॉट पॉजिटिव होता। तो इसलिए Mn2+ अगर देखें तो काफ़ी स्टेबल होना चाहिए, इसलिए वो Mn में कन्वर्ट होना प्रेफर नहीं हो रहा। सिमिलरली जिंक भी। लेकिन निकल का केस जो है वो काफ़ी अलग है। निकल का हाइड्रेशन एनर्जी जो है डेल्टा एच हाइड्रेशन वो ज़्यादा है, इसके वजह से इसका ई नॉट नेगेटिव है। हमें दिख रहा है डेल्टा हाइड्रेशन एनर्जी जो है नेगेटिव होता है जनरली, इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसका ई नॉट ओवरऑल नेगेटिव है। तो ये तीन जो है एक्सेप्शंस याद रखना है, मैंगनीज निकल जिंक, ये तीनों जो है इसका ई नॉट वैल्यू फॉर कन्वर्शन फ्रॉम M2+ टू M इज नेगेटिव। इसके अलावा यहाँ पे टैबुलर फॉर्मेट में यही दिया है, सारे डेटा फॉर्मेट में दिया है, हमें इतना याद नहीं रखना है, बेसिक याद रखना है कि कॉपर नहीं, जिंक, मैंगनीज और निकल, इसका ई नॉट काफ़ी नेगेटिव होता है, इसलिए प्रेफर नहीं करता। लेकिन कॉपर का सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो ये सिर्फ यही एक एलिमेंट है जो प्रेफर करता है कन्वर्जन फ्रॉम Cu2+ टू Cu, खुद का वो रिडक्शन करना पसंद करता है, तो इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करना पसंद करता है। तो Cu2+ एक्ट्स लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे M3+ टू M2+, तो ये भी सिमिलर है। इसका मतलब M3+ अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो कन्वर्ट होगा M2+ में, ओके। हमें पता है यहाँ पे कि बेसिकली यहाँ पे ध्यान, लो वैल्यू ऑफ स्कैंडियम रिफ्लेक्स स्टेबिलिटी, तो स्कैंडियम में ये वैल्यू जो है ई नॉट, ये काफ़ी नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब ये रिएक्शन प्रिफर्ड नहीं है, ऑब्वियस है। स्कैंडियम जो है +2 स्टेट में एग्जिस्ट करता नहीं है, वो +3 ही फेवर करता है, तो उसका ई नॉट नेगेटिव होगा ताकि वो ये कन्वर्जन प्रेफर ना करे, +2 में कन्वर्ट ना हो। उसके अलावा द हाईएस्ट वैल्यू फॉर जिंक इज़ ड्यू टू रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टैंडर्ड तो जिंक के लिए पॉजिटिव वैल्यू होता है। ऐसा क्यों, जिंक के लिए पॉजिटिव होता है, ओके। इसका मतलब जिंक +2 स्टेट में कन्वर्ट होना पसंद हो रहा है, +3 से +2, मतलब जिंक का +2 स्टेट स्टेबल है क्योंकि फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। सिमिलरली मैंगनीज का भी पॉजिटिव होता है, ओके, तो ये दो याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे दिया है आयन के लिए लो होता है, मतलब आयन जो है ये कन्वर्जन प्रेफर नहीं करता, वो Fe3+ में ही रहना पसंद करता है। उसके अलावा वैनेडियम का भी दिया है, इस रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ V2+, ओके। वैनेडियम में V2+ की स्टेबिलिटी होती है। इसके अलावा यहाँ पे आगे दिया है ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हम आगे देखेंगे।